Good morning, students. Welcome to class 8. As in today's lecture, I'll be taking politics part as chapter number 9, public facilities. As earlier, the chapters have been taught by the teachers and it has been completed. But in today's lecture, I'll be considering the topic known as public facilities. I am having a certain key points which is near about 18 points. All these 18 points will be discussed today itself and hope so you will be understanding all the things one by one. And before starting this, I will not be doing any case study which are framed in textbook because it is not that much important and it will not be included in exam also. So what I am doing, I am right now starting with the topic what is public facility. Um, you know the certain things considered as public facility. What is public facility? Public facility is nothing but the basic needs which are being provided by the government to common people are considered as like water, education, health, etc. So it is been mentioned in the first point itself. Public facility relates to our basic needs such as water, health, education, etc. These are the terms which are very important for every individual in their life. They need certain facilities and certain things which are being provided by the government. So, government has to be expected to go with the certain rules, regulations to make sure that these public facilities are being provided to the common people and common people can get benefit on it. That's why second point itself says that the government is expected to play a major role in providing public facility to all. अब मैं इनको सिंपल वर्ड्स में अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो पब्लिक फैसिलिटी है क्या? पब्लिक फैसिलिटी वो फैसिलिटी है जो हर एक इंडिविजुअल की नीड्स को फुलफिल कर सके। जैसे हर एक इंडिविजुअल को वाटर कंपलसरी चाहिए होता है, उसी के साथ साथ में हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ के लिए आपको हॉस्पिटल्स की रिक्वायरमेंट होगी। एजुकेशन एक कंपलसरी एलिमेंट हो जाता है जो पब्लिक फैसिलिटी का एक हिस्सा भी है। तो इसको कंप्लीट कौन करेगा या इसके लिए प्लानिंग कौन करेगा या इसके लिए पॉलिसीज बनाएगा कौन? तो इसके रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है वो है गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करे और पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करे हमें, जिससे हम बेनिफिट्स ले सके। इसीलिए थर्ड पॉइंट आपको कहा हुआ है वाटर। एज यू नो दैट वाटर इज ए बेसिक सोर्स। ओके, हर एक इंडिविजुअल को पानी की जरूरत तो पड़ती ही है क्योंकि ये एक बेसिक नीड है हर एक इंडिविजुअल की। ओके, हर एक इंडिविजुअल इसके लिए कुछ भी कर सकता है। पानी अगर नहीं होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता अपनी लाइफ के लिए और उसके पास गुड हेल्थ नहीं होगी। इसीलिए वाटर क्या है, आपका एक बेसिक नीड है। इसी को कंसीडर करते हुए हम लोग आगे चल रहे हैं। इट इज एन एसेंशियल फॉर लाइफ एंड फॉर गुड हेल्थ। In short, here we can say that it is essential part of our life because अगर वाटर नहीं होगा तो हम लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे, हमारी बॉडीज हमें सपोर्ट नहीं करेगी और साथ साथ में हम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करेंगे। जैसे बहुत बार बीमार रहेंगे या बहुत बार ऐसा कंडीशन हो जाएगा जो डिजीज़ की वजह से हमें बहुत सफ़र करना पड़ेगा। तो वाटर हमारे लिए बेटर होना ज़रूरी है। तो वाटर कैसे रिक्वायर्ड है? वाटर इज़ नथिंग but we need a drinking water in sense safe drinking water जिसके अंदर कोई हार्म ना हो ह्यूमन बॉडी को। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, safe drinking water has to be provided by the government to make sure that every individual gets benefit from it. Okay, तो safe drinking water कैसे हम ये कर सकते हैं? Safe drinking water can prevent several waterborne diseases such as diarrhea, dysentery, cholera, etc. Unfortunately, India has the large number of cases of this disease. अगर सेफ ड्रिंकिंग वाटर अगर आप प्रोवाइड करते हो कॉमन पीपल को तो ये डायरिया का प्रॉब्लम, डायसेंट्री का प्रॉब्लम, कॉलेरा का प्रॉब्लम ये सब नहीं होगा, कोरोना का प्रॉब्लम नहीं होगा। इन शॉर्ट यहाँ पे हमारे इधर इंडिया में ये सारी डिजीज बहुत कॉमन है और लार्ज नंबर ऑफ केसेस इसके होते हैं एवरी ईयर। क्यों? क्योंकि हमारे इधर सेफ ड्रिंकिंग वाटर पॉसिबल नहीं है
कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर हमें अभी भी वर्क करने की ज़रूरत है, और ड्रिंकिंग वाटर हर एक इंडिविजुअल तक नहीं पहुँचता। सेफ ड्रिंकिंग वाटर तो बिल्कुल नहीं पहुँच पा रहा है। तो कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं या ऐसी सिटीज़ जहाँ पे पानी की फैसिलिटी ग्रेट है, वंडरफुल है, क्योंकि वहाँ पे बिजनेस बहुत ज़्यादा है। और कुछ ऐसे लोकेशंस भी हैं या कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे वाटर ही नहीं है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर तो बहुत दूर की चीज़ है, वहाँ पे वाटर ही नहीं है। वाटर के लिए लोग 20-20 माइल्स चल के जाते हैं वाटर के लिए। ऐसी भी सिचुएशंस इंडिया के अंदर है। इसीलिए कहा गया है कि इंडिया के अंदर सेफ ड्रिंकिंग वाटर बहुत ज़्यादा लोगों के पास नहीं पहुंच पाता, और इसीलिए यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है वो डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, और कितने लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है बिकॉज ऑफ दिस डिजीज। यहाँ पे एक फिफ्थ पॉइंट आपको दिया हुआ है, चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5। ओके, कौन सा साल? 5 ईयर की एज में हम जब बात कर रहे हैं एक किड की, तो वो किड कितने साल का? 5 साल के। इसमें हर रोज एक बच्चा मर जाता है बिकॉज ऑफ दिस डायरिया, डायसेंट्री एंड कोलेरा। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि बच्चों को भी सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है, तो हर एक एज में 5 साल के बच्चे की उम्र में एक बच्चे की डेथ हो जाती है हर दिन, क्योंकि ये डिजीज आपके इसमें पहुंच जाती है। क्यों पहुंच रही है? क्योंकि हमारे इधर सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल प्रॉपरली नहीं है। तो ये चीज़ याद आपको रखनी है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली कहा हुआ है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, और इस डिजीज़ की वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। अगर आप देखोगे पूरे कॉन्सेप्ट को वापस से एक बार, तो हम इसके अंदर ये चीज़ समझ रहे हैं कि बेसिक नीड्स को प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। ओके, तो गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेता है वो हमारे बेनिफिट्स के लिए लेगा, और उसके अंदर से हम लोग एक प्रॉपर एजेंडा को लेके चल रहे हैं। वो एजेंडा है वाटर। वाटर हर एक इंडिविजुअल की नीड है, और हर एक इंसान का राइट है कि वो वाटर को कंज्यूम कर सकता है, कोई इसको रोक नहीं सकता। वाटर जो है वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो उसी बेस पे यहाँ पर कहा भी है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर कैन प्रिवेंट सेवरल वाटर बोर्न डिजीज। वाटर बोर्न डिजीज जो है वो बहुत ही डेंजर है, जैसे डायरिया हो गया, डायसेंट्री हो गई, कोलेरा हो गया, और उसके अलावा बहुत सारी बीमारी है जो पानी के ना मिलने से या पानी की खराबी की वजह से हमें हो जाती है। फिर यहाँ पे एक सेंटेंस भी आपको कहा है कि हमारे इधर जो हर एक बच्चे के अंदर कम से कम 5 साल की उम्र के अंदर एक बच्चा हमेशा मरता है या हर दिन मरता है ये डिजीज की वजह से। तो ये सेंटेंस आपको समझ के चलना है। अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई इश्यू है इस रिलेटेड इस 6 पॉइंट के अंदर, तो आप जरूर कमेंट बैक करें। वी विल रिप्लाई बैक एज सुन एज पॉसिबल। पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं। As public facility has been provided by the government, but do you know that these rights are being provided in our constitution also? तो ये चीज आपको समझ जानी चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये रिकॉग्नाइज करता है कि राइट टू वाटर इज द पार्ट ऑफ राइट ऑफ लाइफ। यहाँ पे ये सेंटेंस को समझ लो। अंडर आर्टिकल 21 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक चीज फ्रेम की गई है। फ्रेम ये है, इसमें फ्रेम ये किया गया है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि हमारी जो जिंदगी है या राइट टू लाइफ जो हमारी है, उसके अंदर एक पार्ट ऐसा भी है जिसमें ऐसा कहा है कि हर एक इंडिविजुअल के पास राइट टू वाटर होना जरूरी है। राइट टू वाटर मीन्स एवरी इंडिविजुअल हैज अ यूनिवर्सल एक्सेस टूवर्ड्स द वाटर। मैं भी पानी पी सकता हूँ, आप भी पानी पी सकते हैं, कोई भी इंसान कोई भी जानवर पानी पी सकता है, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। और ये राइट टू वाटर जो है वो अंडर आर्टिकल 21 पे फ्रेम किया गया है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में कहा भी है, इट मीन्स दैट देयर शुड बी अ यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर। ओके, यहाँ पे क्लियरली कहा है कि यहाँ पे पानी का इस्तेमाल हम लोग पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी कर सकते हैं विदाउट गिविंग एनी पेमेंट टू एनी अदर पर्सन। ठीक है, तो ये चीज को आपको दिमाग में रखना है कि पानी जो है वो हर एक इंडिविजुअल के लिए कंपलसरी है। हाँ, कुछ स्टेज ऐसे होते हैं जहाँ पे वाटर को प्योरीफाई किया जा सकता है, तो प्योरिफिकेशन के लिए मशीनरीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए आपको नॉमिनल चार्जेस पे करने पड़ते हैं, वो बेरेबल है, हम कर सकते हैं। तो उसी बेस पे यहाँ पे कहा भी है कि वाटर को हम मना नहीं कर सकते।
कोई मांगता हो तो उसको भी देना चाहिए। और साथ साथ में यहाँ पर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वाटर के ऊपर किसी का रोक नहीं है, कोई किसी को जोर जबरदस्ती ऐसा नहीं बोल सकता कि आपको पानी नहीं पीना है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है कि हर एक इंडिविजुअल के लिए वाटर कंपलसरी है, हर वो पी सकता है पानी। अब नेक्स्ट फ्रेम अगर हम देखें, बट इट रियली इट डज नॉट हैपन सो, और एक्चुअल सिचुएशन अगर हम दिमाग में रखें तो ऐसा हो नहीं रहा है हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वाटर ही सोर्स नहीं है, वाटर के अलावा भी दूसरी पब्लिक फैसिलिटीज है जो हर एक इंडिविजुअल की नीड है, जो पॉइंट नंबर 8 आपके लिए मैं फ्रेम कर रहा हूँ। नॉट ओनली वाटर बट अदर फैसिलिटीज सच एज हेल्थ केयर, electricity, public transport, schools, college are also need to be provided to all. ओके, यहाँ पे एक चीज आप अपने दिमाग में बिठा लें कि यहाँ पे कहा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ वाटर ही एक पब्लिक सोर्स नहीं है, उसके अलावा हेल्थ केयर मीन्स हॉस्पिटल फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी मतलब हर घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, उस पावर का इस्तेमाल लोग कर सके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रेलवेज, रोडवेज के अंदर आता है बसेस जो नॉर्मली रन होती हैं और पब्लिक सर्विसेज का इस्तेमाल किया जाता है बाय पब्लिक। उसके बाद में स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ये उन लोगों के लिए होता है जिनके पास मनी नहीं है या उतना अफोर्डेबल कंडीशन नहीं है कि वो कॉलेजेस को या प्राइवेट कॉलेजेस को पे कर सके। इसीलिए यहाँ पे कहा है कि गवर्नमेंट नीड्स टू इम्प्रूव दिस सिचुएशन ऑल्सो, not only water but healthcare, electricity, public transportation, schools and colleges. As I have completed 8 points over here, but still I need to make sure that in this chapter we will not be following case study because it will not be included in your paper. We will discuss only those topics which are very important and we need to discuss on this one by one. And as we have completed our 8 point over here, okay, now we are into the ninth point. Ninth point refers that the chief feature of public facility is that once it is provided, its benefits can be shared by several people. एक बार आपने कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी ना पब्लिकली, तो पब्लिक उसका बेनिफिट्स लेना जानती है, पब्लिक उसको ऑटोमेटिकली बेनिफिट्स में ले लेती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इफ एन एरिया, ओके, you can find that if an area supplies with electricity, be careful with the term, it says that कि अगर आपकी एरिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कितने सारे घर जो हैं उनके घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। कैसे? एक पावर ही तो लाना है, लेकिन वो पावर आते आते बहुत मेहनत लगती है, तो उस पावर को लाने के बाद में आपकी लोकेलिटी में बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होगा। If you give one public facility to public, then the public will utilize amongst different people. So it is being considered here in example. If an area is supplied with electricity, it means that the entire people of that area can use its benefits. अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी अगर एक लेकर आ रहा है तो सबको बेनिफिट होगा। उसी तरह से अगर हम ऐसा कह सकते हैं कि बाथिंग फैसिलिटी या सैनिटरी फैसिलिटीज अगर हम प्रोवाइड कर दें तो उस सैनिटरी एरिया का इस्तेमाल वहाँ के लोग भी कर सकते हैं आसानी से। तो इसी को हम लोग दिमाग में रख रहे हैं अभी। नेक्स्ट पार्ट इज point number 10. One of the most important function of government is to ensure that public facility are made available to everyone. Yes, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट ये है और या इम्पोर्टेंट रोल ये है कि वो ये एश्योर करे कि हर चीज़ जो वो पब्लिकली इश्यू करती है उसका इस्तेमाल हर एक इंडिविजुअल प्रॉपर्ली करे और पब्लिक फैसिलिटी हर एक के लिए अवेलेबल हो, whether it is rich or whether it is poor. Every individual needs to get this facility at their convenience. Okay. Next point आपको दिया हुआ है, the government gets money from public facility. Okay, इसको ध्यान में रखना क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है, यहाँ पे वर्ड यूज किया है मनी फ्रॉम पब्लिक फैसिलिटी फ्रॉम द टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल। यहाँ पे यही ध्यान रख के काम करना है कि पब्लिक के टैक्स के मनी से गवर्नमेंट
पब्लिक फैसिलिटी जनरेट कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हम टैक्स पे करते हैं, हम कॉमन पीपल हैं, हम सिटीजन हैं कंट्री के, हम क्या करते हैं, हम टैक्सेस पे करते हैं। उस टैक्सेस के थ्रू गवर्नमेंट पब्लिक फैसिलिटी जनरेट करने में सेटिस्फाइड लेवल तक काम कर सकती है। अल्टीमेटली वो पब्लिक फैसिलिटीज को प्रोवाइड कर सकती हैं वो हमारे टैक्स के मनी से। उस टैक्स मनी से हम उस लोकेलिटी को या उस पब्लिक फैसिलिटी को इस्तेमाल करते हैं। हर बार आप देखते हो रेलवे बजट निकलता है, हर रेलवे बजट में एक नई ट्रेन लॉन्च हो जाती है, वो भी डेस्टिनेशन टू सोर्स तक। तो वो पॉसिबल क्यों है, क्योंकि वो पब्लिक के पैसों से ही वो पब्लिक के लिए बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक कंटेंट में आपको रीड करा दूं। यहाँ पे दिया हुआ है द गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू कलेक्ट दोज टैक्सेस एंड यूज देम फॉर सच प्रोग्राम। और गवर्नमेंट के पास ये राइट भी है कि वो कलेक्ट कर सकता है टैक्सेस। टैक्सेस किससे कलेक्ट करेगा, कॉमन पीपल से। कैसे, बाय इम्पोजिंग लाइक जीएसटी। अभी आप जीएसटी के साथ में ज्यादा फैमिलियर हो इसलिए जीएसटी को इम्पोज करते हैं, और जीएसटी को इम्पोज करने के बाद में उसका इस्तेमाल भी हो रहा है। लोग एंटरटेनमेंट टैक्स पे कर रहे हैं, रोड टैक्स पे कर रहे हैं, व्हीकल टैक्स पे कर रहे हैं। इस टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स को रन करती है। ओके, अब यहाँ पे एक एग्जांपल है लेकिन वो थोड़ा सा शॉर्ट है, तो मैं इधर टाइप नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे पास कंटेंट है तो मैं उसको रीड करके आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा सा शॉर्ट है ये, तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में ले लेता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है to supply water, the government has incurred cost in pump water, carrying it over long distance. यहाँ पे लिखा हुआ है carrying it long distance, laid down pipes for distribution, treating the water from impurities, and finally collected to treating wastewater. It means this expenses partly from the various taxes that it collects the partly by charging the price of the water. This price is set so that most people can afford at a certain minimum amount of water for the daily use। यहाँ पे एक शॉर्ट सा स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को आपको समझना है। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, गवर्नमेंट को एक पाइपलाइन इंट्रोड्यूस करनी है। ठीक है, उस पाइपलाइन के लिए पंप वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो पंप चाहिए होगा, एक पाइप चाहिए होगा। उस पाइप को लाने के लिए पैसे चाहिए, तो वो पैसे कहाँ से आते हैं, टैक्सेस से आते हैं। फिर उसके बाद वो लॉन्ग डिस्टेंस पाइपिंग करते हैं, पाइपिंग करने के साथ साथ में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, अलग अलग लोकेशन से उसको डाइवर्ट करते हैं, और डाइवर्ट करने के बाद में वाटर जो इम्प्योर वाटर है उसको प्योर फॉर्म में लाने के लिए एक मशीनरी रखेंगे, उस मशीनरी से प्योरिफिकेशन करेंगे। प्योरिफिकेशन करने के बाद में कलेक्शन करते हैं, वाटर को कलेक्ट करते हैं, और जो वेस्ट है उसको वो लोग निकाल देते हैं, और जो एक्चुअल वाटर हमें कंज्यूम करने के लिए चाहिए वो आता है साथ में। और ये सारा एक्सपेंसेस जो है वो पार्टली होता है, टुकड़े टुकड़े में हम इसको एक्सपेंस करते हैं, खर्चा करते हैं। तो एक खर्चे के थ्रू हम पानी को सप्लाई करते हैं कॉमन पीपल तक। तो कॉमन पीपल तक जब वो पानी जाता है तो उसके लिए हमें चार्जेस लगाने पड़ते हैं उस प्राइस के ऊपर, और वो चार्जेस भी ऐसे होने चाहिए जिससे कॉमन पीपल डे टू डे वो वाटर का इस्तेमाल कर सके। अगर आप रिसेंटली कहीं पे भी रेलवे स्टेशन में गए हो या रेलवे ट्रेन के अंदर कभी सफर किया हो, तो रेलवे स्टेशन पे अगर आप देखते हो तो एक वाटर बूथ है। उस वाटर बूथ के अंदर आप 1 लीटर ऑफ वाटर के लिए 2 रुपीज पे करते हो। आप 2 रुपए का कॉइन डालोगे, वाटर 1 लीटर की वाटर के वाटर फुलफिल हो जाएगा। तो वहां पे मशीन अवेलेबल है। तो ये क्या है, ये अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने अपने टैक्स कलेक्ट करने के बाद में ऐसा एक सिस्टम बनाया जिससे कॉमन पीपल वो वाटर को विदाउट टच प्योर वाटर को कंज्यूम कर सकता है। तो ये फैसिलिटीज उन्होंने बनाई हैं, रेलवे स्टेशन पे भी हैं, पब्लिक एरियाज या पब्लिक मार्केट के अंदर भी ये मशीन्स अब अवेलेबल हो चुकी हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया है, although it has been public facilities should be made available to all, in reality we find that shortage। जो हमारी आबादी है या कंट्री की जो आबादी है उस हिसाब से हमारे इधर पब्लिक फैसिलिटी है जरूर, लेकिन उतनी नहीं है जितनी फुलफिल होनी चाहिए। हमारे इधर शॉर्टेजेस बहुत ज़्यादा है।
तो उसीलिए यहाँ पे बोला है एज मेंशन्ड अबाउट द वाटर इज public facility of great importance, but the tragedy is that it is not available to all. पब्लिक फैसिलिटी में वाटर अवेलेबल जरूर है, लेकिन हर जगह पॉसिबल नहीं है। लाइक राजस्थान इज द प्लेस, रंज ऑफ कंच इज द प्लेस जहाँ पे पानी की बहुत शॉर्टेज है, पानी बहुत एक्सपेंसिव है वहाँ पर। आप वहाँ पे पानी को थ्रो करते हो तो भी पेनल्टी लग जाती है। तो ऐसे सिचुएशन है वहाँ पर, तो पानी नहीं फेंकना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर पब्लिक फैसिलिटी के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे वाटर, प्योर वाटर मिल जाता है, ड्रिंकेबल वाटर मिल जाएगा, नॉट प्योर बट ड्रिंकेबल वाटर आपको मिल जाता है। लेकिन कुछ लोकेशंस ऐसी भी हैं जहाँ पे पानी ही नहीं है या पानी मिलता ही नहीं है। अगर मिलता है तो वो इतना एक्सपेंसिव है कि कॉमन पीपल उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद में यहाँ पर आपको बोला हुआ है, उसके बाद में आपको बोला हुआ है the poor people are the worst sufferers because they do not have money to purchase water from private company। अब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो अपने वाटर को प्योरीफाई करने के बाद में उसको हाई रेट्स पे बेचती हैं। For example, you can have a different company brand names. In that brand names, you can have an idea that they purify water and they sell out the product of 20 rupees, 30 rupees per liter. Whereas if we go with the government godowns where the water has been provided, it will be charged only 2 rupees or 3 rupees maximum. तो यहाँ पर ऐसा भी है ना कि कुछ पुअर पीपल जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। वो इसीलिए सफ़र कर पा रहे हैं क्योंकि पब्लिक कंपनी जो है वो वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा चार्जेस लगाती है, इसीलिए ये एक प्रॉब्लम हमारे इधर भी है। कुछ क्राइसिस भी हैं, तो उस क्राइसिस के बारे में भी हम पढ़ते हैं। क्राइसिस क्या कह रहा है? क्राइसिस ऑफ वाटर बिकम्स एक्यूट ड्यू टू द समर मंथ्स इन द सेवरल स्टेट्स ऑफ द कंट्री। यस इट इज, क्योंकि गर्मी का मौसम जब आता है तो पानी जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि पानी की शॉर्टेजेस भी होने शुरू हो जाती है क्योंकि हमारे इधर गर्मी इतनी पड़ती है और गर्मी की वजह से कॉमन पीपल तक पानी नहीं पहुँच पाता। अगर पहुँचता है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो नॉर्मली यहाँ पे 16 पॉइंट अगर हम आते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है द शॉर्टेज इन म्युनिसिपल वाटर इज इंक्रीज being filled by the expense of private company who are selling water for profit। म्यूनसिपैलिटीज जो पानी आपको पहुंचाती है या जो आपके लोकेलिटी में जो भी नगर पालिका है वो पानी आप तक पहुंचाती है, करेक्ट। तो वो पानी पहुंचाती तो जरूर, लेकिन उसका शॉर्टेज भी है। तो उसका शॉर्टेज को फुलफिल कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट कंपनी की है। तो प्राइवेट कंपनी क्या करती है? प्राइवेट कंपनी अपने मुनाफे के लिए या अपने बेनिफिट्स के लिए वाटर को प्रॉफिट्स में बेचती है, ठीक है। There may be a problem while reading 17 point or 18 point, but I am reading for you, just concentrate on the point। A shortage of municipal water is often taken as a sign of failure of government। हाँ, म्यूनसिपैलिटीज की जो वाटर फैसिलिटी प्रोवाइडिंग जो है उसके अंदर अगर शॉर्टेज है तो अल्टीमेटली हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ने प्लानिंग बराबर नहीं की है और वाटर शॉर्टेज को उसने सॉर्ट आउट नहीं किया है। 18 पॉइंट ये कहता है कि अवर कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज मेनी ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज एज बीइंग अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कंसीडर करता है कि पब्लिक फैसिलिटी एक हिस्सा है हमारी जिंदगी का जिसके अंदर हम लोग राइट टू लाइफ को रन करवाते हैं या अपनी लाइफ के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नाउ इट इज द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दिस these rights are protected so that everyone can lead a good life। इसमें गवर्नमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। यहाँ पे रोल क्या कहता है कि राइट टू लाइफ जो है वो हमारी जिंदगी के रिलेटेड है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि राइट टू लाइफ जो है वो एक हिस्सा है आर्टिकल 21 का। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि हर एक इंडिविजुअल अच्छी जिंदगी जिए। तो इधर यहाँ पर मैं एक सेंटेंस जरूर ऐड करूंगा कि गवर्नमेंट जो है उसके पास एक पावर है जिसके इस्तेमाल से वो कॉमन पीपल की अच्छी लाइफ बना सकता है या बिगाड़ सकता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि राइट टू लाइफ के थ्रू वो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स या ऐसे पॉलिसीज बनाए जो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट भी करे और साथ साथ में हमें अच्छी जिंदगी भी प्रोवाइड करे।
ये कुछ 18 पॉइंट्स है जो मुझे डिस्कस करने थे पब्लिक फैसिलिटीज के लिए। नोट्स हम आपको बाद में प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ये कुछ 18 की पॉइंट्स हैं जिसको हम स्टडी कर सकते हैं, और इस 18 पॉइंट के थ्रू आप समझ सकते हो कि कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है और पब्लिक फैसिलिटीज में क्या क्या होता है। ये टॉपिक मैंने एंड किया है, मीन्स पब्लिक फैसिलिटी का चैप्टर खत्म होता है। पब्लिक फैसिलिटीज के साथ साथ में हम दूसरे 2 और चैप्टर्स करने वाले हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा। पब्लिक फैसिलिटी हमारी तरफ से एंड होता है। ये 18 पॉइंट्स को अगर आप देख भी लेते हो तो भी आपको आइडिया हो जाएगा पब्लिक फैसिलिटी होता क्या है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।